مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام نور ٹی وی دیکھنے والوں کو سلام۔ اور آج میں موجود ہوں چھوٹی ناسی، اور یہاں پہ خدا کے خادم بہت ہی مضبوط، تو ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے چھوٹی سی ان کے بارے میں گواہی لیتے ہیں۔ جی کیا حال ہے سر؟ جی ہاں جی ٹھیک، شکر ہے سر، آپ ہمارے نور چینل کو تھوڑا سا بتائیں اپنی گواہی کے بارے میں اور اپنے میسیج کے بارے میں جو آپ ان سب کو سنا رہے ہیں۔ میں جی سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے آج وقت دیا تاکہ ہم نور ٹی وی کے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اور میری یہ 5 سال کی گواہی ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرا باپ جو تھا وہ پاسٹر تھا، تو کافی باتیں جو ہمیں سیکھنے کے لیے گھر سے ملی ہے۔ اور میری ایک سسٹر ہے پاسٹر نومی، وہ بھی خدا کی خدمت کرتی ہے۔ میں پاسٹر اشرف عنایت، میرا تعلق چھوٹی ناسی سے ہے۔ میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ 5 سال سے ہمیں اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ ہم اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر خدا کا بیٹا یسوع جو بڑی کثرت سے ہمیں استعمال کرتا ہے، اس کے لیے ہم خدا باپ کی شکر گزار ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم آج ایک چھوٹی سی اپنی گواہی دیں گے تاکہ آپ اس گواہی سے خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں۔ آمین۔ جب میں خدا کی خدمت میں نہیں تھا تو میری بہن خدمت میں تھی، تو جب میں خدمت آنے سے پہلے خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے پاس، بچوں کے پاس چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، مگر ان میں سے جو ایک گولی ہے، وہ بڑی گولی جو ہے وہ آگے جاتی ہے۔ تو میں اس خواب کو سمجھ نہیں سکا، یہ کیا خدا کی طرف سے مجھے خواب آ رہی، بار بار یہی مجھے خواب آتی تھی۔ میں نے پھر کسی خادم سے شیئر کی، اور خادم نے مجھے بتایا کہ خدا جو ہے وہ آپ کو ناسی میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے ہو کر کام کریں۔ تو جیسا ہی میں نے اس رویا کو سمجھا، تو 40 سال سے ہمارے چرچ کی جو دروازہ تھا وہ 40 سال سے بند تھا۔ جیسے مجھے خدا نے یہ رویا دکھائی، سب سے پہلے میں نے چرچ کے لیے، خدا کے گھر کے لیے کھڑا ہوا، اور میں آج خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ ہمارا کیس جو تھا وہ ہم جیت چکے ہیں۔ اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ ناسی میں پہلے کوئی چرچ نہیں تھا، ہمارے وسیلہ سے آج چرچ بھی موجود ہے، تو وہاں پر خداوند کے نام کو عزت اور جلال بھی دے رہے ہیں۔ اور خداوند کا شکر، اس چرچ میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی برکتوں کو ریسیو کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی میری گواہی ہے۔ خداوند آپ کو اس گواہی کے سبب سے برکت دے۔ آمین جی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے ان کی گواہی کے بارے میں، اور آئیں ان سے ہم تھوڑا میسیج بھی سنتے ہیں اور کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے متی رسول کی انجیل مقدس، اس کا 26 باب اور اس کی ہم 43 آیت تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ اس حوالے کو نکالیں۔ اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر آ کر انہیں پھر سوتا پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی۔ خداوند کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت کا واقعہ جب یسوع مسیح گتسمنی میں رات کو دعا کر رہے تھے۔ اس وقت یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اگر ہم 41 آیت کو پڑھے تو یسوع نے انہیں فرمایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح ہمیں اس وقت ان شاگردوں کو سکھا رہے، تو آج ہم سے ہم کلام ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، مگر ہم تب دعا کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ آزمائش میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، جیسا ہی گتسمنی میں لوگ یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر ایک بھی شخصیت وہاں پر نظر نہیں آئی، وہ سب یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور پترس رسول جو ہے اس نے یسوع سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مروں گا، تیرے ساتھ ہی جیوں گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے اسے فرمایا کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ تو میرا انکار کرے گا۔ اور میرے عزیزو، ایسا ہی ہوا۔ کیوں اس پر اتنی آزمائش آئی؟ کیوں سب شاگرد یسوع کو چھوڑ کر بھاگے؟ اس لیے کہ میرے عزیزو، وہ یسوع کے ساتھ جاگتے نہیں رہے بلکہ سوتے ہی رہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہمارا سونے کے سبب سے ہماری زندگیوں میں کون سی مشکلاتیں آتی ہیں۔
हम देखेंगे कि नबियों की ज़िंदगियों में कौन सी मुसीबतें परेशानी आई, कब आई, जब वो खुदा के हुज़ूर सो गए, जब उन लोगों ने रात को उठकर दुआ ना की, जब वो सो गए, उनके सोने के सबब से खुदा के कलाम में लिखा है वो मुश्किलात में पड़ गए। अगर आज हम सो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में कौन सी बरकतें हैं जो वो हम उन बरकतों से खाली रह जाते हैं। बरकतें हमारी ज़िंदगियों में कायम नहीं रहती, क्योंकि हम सोते ही रहते हैं, जागते नहीं। जागना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम सोते हैं तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शिगिर्द जो है वो यीशु को छोड़कर भागे। उन पर कितनी आजमाइश आई। यीशु मसीह ने उनसे कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज वो हमसे कहता है, अगर आज हम जाकर दुआ नहीं करते, हम सोते ही रहते हैं, तो फिर हम कितनी मुश्किलातों में पड़ सकते हैं। और बहुत से लोग पड़े भी हुए हैं। तो मेरे जो जब हम पैदाइश 15 बाब जब हम उसकी 8 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा जो है वो अब्राहम से वादा करता है कि मैं तेरी बहुत बड़ी सीपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने से कहा तू बाहर निकल कर आसमान की तरफ निगाह कर, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी होगी। फिर अब्राहम ने खुदा से कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि ये सब कुछ तू मुझे देने वाला है। तो खुदा के कलाम में लिखा है 9 आयत में, पैदाइश 15 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और कुंबरी का और कबूतर का एक बच्चा ले। और उसने उन सबों को लिया, उनके बीच से 2 टुकड़े किए, हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हाँकता रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे 5 तरह की कुर्बानियों करने का हुक्म दिया, और उसने 5 तरह की जानवरों को खुदा के हुज़ूर ज़िबा किया, और बड़े टुकड़ों को दूसरे टुकड़ों के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। और 12 आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, जब वो शिकारी परिंदे उस टुकड़ों पर झपटने लगे तो अब्राहम उनको हाँकता रहा। और खुदा के कलाम में लिखा, सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गलबा हुई, और देखो एक बड़ी होलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान ले कि तेरी नस्ल के लोग उस मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर अब्राहम जो है वो खुदा के हुज़ूर सो गया। वो कुर्बानी रखकर अभी खुदा का इंतज़ार कर ही रहा था, खुदा नहीं आया, बल्कि उस कुर्बानी को जो परिंदे थे वो उस पर झपटने लगे। अब्राहम उनको पहले हाँकता रहा, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सो गया। उसके सोने के सबब से खुदा ने कहा कि अब तेरी कौम 400 साल तक गुलामी करेगी। तो मेरे अजीजों, इसलिए बनी इस्राएल कौम 400 साल तक गुलाम थी, और फिर खुदा ने उन्हें उस गुलामी से निकाला। फिर हम कज़ात की किताब उसका 16 बाब उसकी 6 आयत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तब दलैला ने समसून से कहा, मुझे तू बता कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है, और तुझे अजियत पचाने के लिए किस चीज़ से तुझे बांधा जाए। समसून ने उससे कहा कि मुझको 7 हरी हरी बैंड से जो सकाई ना गई हो बांध, तो मैं कमज़ोर होकर आदमी की तरह हो जाऊँगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि समसून जो बड़ा खुदा का सूरमा है, वो जंगजू सूरमा है, और खुदा के कलाम में लिखा 1000 सिपाही उनके उससे लड़ने के लिए निकला, मगर खुदा के कलाम में लिखा उसके पास कोई हथियार ना था। मगर जब उसके पास एक गधे का जबड़ा आया, उस गधे के जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार दिया, और अकेले ने जंग जीत ली। क्यों? क्योंकि उसके पास जोर था। उसकी शाहजोरी का राज उसके बालों में था। उसके सर पर 7 लटें थी, और बादशाहों ने एक औरत को जिसका नाम दलैला है उसके पीछे लगा दिया ताकि वो इस राज को फाश करे, इसके पास इतनी ताकत क्यों है। और खुदा के कलाम में लिखा, दलैला ने उसे 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, और उसने नाम बताया, उसने बार बार झूठ बोला। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, आखिर में उसने बता दिया उसे। और 19 आयत में लिखा है, जब उसने उसे बताया तो उस औरत ने उसे अपने गोदी पर लटा कर, खुदा के कलाम में लिखा, उसकी 7 बाल की लटें जो थी वो मंडवा डाली। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आम इंसानों की तरह कमज़ोर हो गया।
اور उसने उसे अपनी गोदी में सला लिया। उसके सोने के सबब से उसका शाहजोरी का राज फाश हो गया। जब हम आज सो जाते हैं तो बहुत सी बरकतों से हम खाली रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हम जाकर दुआ करें। फिर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, यहाँ पर शमसून सो गया, उसकी शाहजोरी का राज फाश हो गया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो उसका ज़ोर था वो उससे जाता रहा, और फस्तियों ने आकर उस पर उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे जास्ती की। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो वहाँ पर सो गया, उसकी सोने के सबब से उसकी 7 लौटों का राज जो था वो फाश हो गया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 25 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10 कुंवारियों का जिक्र है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है 10 कुंवारियाँ, और खुदा के कलाम में लिखा 5 वो हैं जो अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ़ हैं। और अक्लमंदों ने अपनी मशले भी जलाए और अपनी कुप्पियों में तेल भी डाला और अपने दियों को जला लिया। और वो 5 जो अक्लमंद है वो तो खुदा की ज़ूरी में चले गई, मगर 5 बेवकूफ़ जो है वो बाहर रह गई। तो मेरे अज़ीज़ों, सॉरी के साथ, माजरत के साथ, मैं इनको 10 खादमों से तशबीह देता हूँ। 10 खादम ऐसे खादम हैं जिनमें से 5 वो हैं जो रात को जाकर अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। ना तो खादम बीमार है ना कलीसिया बीमार है, खादम भी बेदार और कलीसिया भी उनकी बेदार है। और 5 यहाँ पर लिखा है वो बेवकूफ़ औरतें, वो बेवकूफ़ लड़कियाँ, बेवकूफ़ कलीसियाँ। मगर मैं समझता हूँ ये 5 वो खादम हैं जो ना रात को आप सोते हैं, जो रात को ना आप जागते हैं ना कलीसिया जागती है। वो भी सो रहे, कलीसिया भी सो रही है। मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम जाकर दुआ करें ताकि हम बरकतों के हकदार बन जाएं। अगर हम जाकर दुआ ना करेंगे तो ज़मैशें हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं, वो तो हमारे घर में अंदर आ जाएगी, हमारे जिस्मों में आ जाएंगी, फिर हम मुश्किलातों में पड़ जाएंगे। यीशु ने वहाँ पर फरमाया जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। हम सीखते हैं कि जब हम जाकर दुआ करते तो फिर कोई आजमाइश हम पर नहीं आती। तो यहाँ पर 10 कुंवारियों में 10 खादम है। 5 खादम वो जो अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहाते हैं और रात को अपना सोने का टाइम जो है वो ख़त्म करते और जागते और दुआ करते हैं। वो 8 दिन के बाद अपनी कलीसिया में जाते हैं। कलीसिया बेदार होती है क्योंकि खादम बेदार है। जब कलीसिया बेदार है तो खादम भी बेदार होगा। जब कलीसिया सो रही है तो खादम भी सो रहा है क्योंकि खादम जाकर दुआ नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने हम खादमों को भी कहा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अज़ीज़ों, मेरी नज़र में 4 लोग हैं जो जागते हैं। चोर चोरी करने के लिए जागता है ताकि लोग सो जाए और मैं चोरी करूं। पहरेदार अपनी तनख्वाह के लिए जागता है, और गैर ईमानदार बेटियां और बेटे एक दूसरे के लिए रात को जागते हैं, मगर खुदा के लोग सिर्फ खुदा के लिए जागते हैं। और मैं चाहता हूं आज आप इस चैनल से सीखें, इस कलाम से सीखें कि हमें चाहिए कि हम जाकर दुआ करें। हम वो बांझे खादम जो अपने महबूब को रात में सोते वक्त नहीं बल्कि जागते हुए दुआ करता है, जागता अपने महबूब के साथ बात करता है। अब जब हम उसके महबूब होंगे तो फिर हर एक चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। शुक्रिया।